That is yeah, you can share the screen right now. ठीक है, तो शुरू कर लूँ मैं? I think it's better to start. Okay. अस्सलाम वालेकुम. So, मैं नाम मोहम्मद मुजतहिद, मैं Advanced Robotics is my master's कोर्मुत, Erasmus Mundus Joint Masters Degree Program is under. So Shakil Bhai and I, we decided to organize this session so that all of you can know about the Erasmus Mundus Joint Masters degrees. As the juniors, colleagues, Kashir Erasmus Mundus is going to apply current. We thought that we should organize this session so that many of our friends and colleagues would know about it. So just to make sure that you can hear me, Shakil Bhai, you can do me a heads up. Am I audible? Yeah, you're audible. Audible nahi? You can share the screen. Audible hai sara? Yeah, everything is audible. Okay. Can you see it? Yeah, I can see the screen. Okay. Okay, so Botswana ke various students या juniors تم چن کران Erasmus Mundus Masters joint degree join की, तो मैं मुझे पूरे decide किया इसका कोई session organize. But before I start talking about the Erasmus Mundus joint Masters degree, there are some basic mistakes in Kashir juniors yes in those in Karan even this European या American university masters का apply आ सकता है. Basic चीज़ ये इस गलती से करान, we hurry about our applications. Whenever we get an acceptance, we just go for it. We don't wait and decide like if we get a better one or if we should opt for it. Like यम साथ इस bachelor's च मकलावन you see is going to acceptance च मिलान इस सुई join करान. इसमें ये consider करान कि इसमें मेल का better option या इसमें आपको बेक में जाए try करें. But चीज़ ऐसा बांबर करें कि we shouldn't hurry about joining the things. अगर आखिरी like थे अगर तो सब्र ते पे करन किस वजह से this is inshallah more than worth if you can wait for a year. क्योंकि अगर आपका acceptance किसी अच्छे प्रोग्राम में मिल रहा है तो that's better than finishing your masters from whichever comes first like a year earlier. So एक साल अगर extra भी जा रहा है आप लोगों का, it's better तो फिर थोड़ा सब्र का असल प्रोग्राम करो join. So first thing that we should learn that we shouldn't hurry about joining whichever acceptance we get first. Okay, before I start sharing the PPT, I will just finish with the introduction and then I will, before putting on the PPT, I will just finish with the basic introduction. Okay, so the basic thing is like we shouldn't hurry about things. अगर इस आखिरी like the application या ज़रूरी थे अगर कोई इंसान लगन कैंशन परवाई bachelor's के बाद इंसान बस टाइम होता है थोड़ा बहुत इंसान अच्छे से टाइम यूटिलाइज कर सकता है. अगर आप चाहते हो कि टाइम ज़्यादा यूटिलाइज ना हो, बैचलर्स 7 सेमेस्टर के एंड से आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू कर सकते हो. लेकिन जो भी एक्सेप्टेंस पहला मिले उसमें जाके डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना है, अच्छे से डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना है, पहली चीज़. और दूसरी चीज़, हम बहुत कम एप्लीकेशंस करते हैं. मुझे पनुन पर कुछ पन्ने एक्सपीरियंस है माना मेल अप्लाई उस करूँ मैं सिर्फ दोन जाएं अप्लाई करूँ मास्टर्स कुछ वारिया कम कंसिडरिंग कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एटलीस्ट फॉर माय एक्सपीरियंस में उसने ज़्यादा पाई कि मैं उस Erasmus Mundus प्रोग्राम में उस एजाज सर्च डिज़ाइन उसमें रिकमेंड करूँ एडवांस रोबोटिक्स प्रोग्राम मैं पाने प्रोग्राम में से अप्लाई करूँ तो मैं प्रोग्राम ही में अप्लाई करूँ. मगर पतेल भी हो रहा उस लाइक
there are so many opportunities which we can utilize for applying. أسۍ چھِ صرف university rankings check کران university rankings کھۄتہٕ زیادٕ important چھِ location check کَرٕنۍ programmٕچ like کانٛہہ university چھِ like اگر أسۍ IIT consider کرو IIT یَس چھِ ranking واریاہ high مگر location چھِ Indiaہَس منٛز تہٕ تَمے حِساب چھُ اَسہِ پَتہٕ پَیی opportunities کۭژاہ آسان تَمے حِساب اگر کُنہِ university جرمنی منٛز ranking کَم تہِ آسہِ مگر جرمنی منٛز چھُ opportunities واریاہ زیادٕ کیٛازِکہِ economically چھِ یہِ جاے strong تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ Nordic countries وٕچھ مےٚ واریاہ کٲشِر student یِم نہٕ Nordic countries join چھِ کران کینٛہہ Nordic countries northern Europe منٛز Sweden, Denmark, Norway یِمن countries منٛز وٕچھ مےٚ واریاہ کَم کٲشِر student apply کران مگر یِمن countries چھِ economy واریاہ strong اگر یِمن countries منٛز اگر university ranking کَم تہِ آسہِ یِمن countries منٛز چھِ توتہِ پَتہٕ opportunities واریاہ زیادٕ آسان کیٛازِکہِ یِم چھِ economically واریاہ stable countries یِم چھِ کینٛہہ basic mistakes یِم أسۍ application کرنہٕ برونٛہہ چھِ کران few things that we should take our time before applying and we should apply to many universities. We shouldn't just apply to one or two universities. And then Erasmus Mundus Joint Master's Degree Program is a very good program. We should surely consider this. So, inshallah, Bukar Panniza pur koshish bahaw to thoda bahut ye programs mutalik details yem se to help mail ki ye program aasan kya chhe. So, Erasmus Mundus is basically European Union sponsored programs as master's programs. So, Erasmus Mundus master's programs Erasmus Mundus master's programs karan karan sorry presentation share. Can you see it now, Shakil bhai? Can you see the presentation? Yes, anyone write okay if you can see the presentation. Okay. So, you see Erasmus Mundus master's degree program master's degree Erasmus Mundus master's degree program Erasmus Mundus joint EMJD Erasmus Mundus joint doctors program Erasmus Mundus joint master's degree program Erasmus Mundus mobility scholarships so Erasmus Mundus in general very asset platform there was some variant question utilize current internationalization is very focused so opportunities region like Kashmir region affected region special consideration officially special consideration SOP letter of motivation mention considerations so you should a very good platform use utilize so basic introduction about the Erasmus Mundus Joint Masters Program. University consortium of universities higher education institutes. Minimum requirement minimum 3 universities form one Erasmus Mundus program. So I should master's program apply you master's program degree use touch minimum 3 universities sign kara. So your degree should barabar 120 ECTS credits so it depend on shorter program 1 year degree can you choose. 2-year master's program you must India must consider barabar 120 ECTS credits so problem apply karne ways more than one university program cover consider karna na karna full dual degree equivalent barabar 2-year program join so achhu benefits agar to it depend kya future ambitions agar to your personal job karun ya agar to PhD kare wapas teaching line join karin ya agar to Middle East job karun ya teaching join karin so you have to decide accordingly like atman variya program agar to Erasmus Mundus joint master's degree you Google EMJMD kare to Google keyword enter to email godni site use
मेलो सो Erasmus Mundus joint master's degree website आसान तो atmos yem vari us check karan more than 243 masters available for 2021 now. So 220 batches already over, so now the applications are for 2021 I guess. तो अभी और इंशाल्लाह आप लोगों को 2021 के लिए शुरू करना होगा तो sorry, just let me make sure you guys can see everything. Okay, yeah. So आप लोगों को 2021 के लिए शुरू करना होगा तो 2021 एप्लीकेशंस के लिए 243 मास्टर्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और ये इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन है लाइक इसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें सोशल साइंसेज भी हैं इसमें नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स भी हैं तो इसमें हर कोई फील्ड अवेलेबल है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सबको यूटिलाइज करना चाहिए और इसमें स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी हैं तो और एक्सेप्टेंस रेट्स इंडिया से बहुत बेटर है ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है इंडिया में पॉपुलेशन वारिया ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज वारिया कम ये फॉर श्योर वारिया कम ये फुल फीस हेकन अफोर्ड कर तो पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप जरूरत आसान तो यम प्रोग्राम सान खुद वारिया असल क्या अत पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल तम सान खुद एजुकेशन वारिया ईजी बनावान उस मास्टर्स प्रोग्राम अगर तुम फुल स्कॉलरशिप मिलो तुम मिलो तुम कहीं ना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरुन ना ट्यूशन फीस भरुन instead मिलो तुम मंथ like every month you will get a stipend of 1,000 euros. So for a master's student, getting a stipend of 1,000 euros every month is a very good opportunity to study, and it gives you mental stability. Like अगर तुम full fees पे पाने भरने और Christmas such a mental pressure you are on पनी जाए कि मैं चाहिए होता ये economic perspective they consider करूँ बेशुम और education they consider करूँ मगर अगर तो full scholarship या partial scholarship मिल तो comparatively कम pressure आसान तो अतमस अगर तो full scholarship मिल तो per month almost as a salary मेरा मगर अगर तो full scholarship मिलो तन की तम पत्ते तो वारिया option आसान country wise available but मैं भाई बोस फ्रांसिस में पढ़ान ताइटस बैक स्कॉलरशिप पर ऐसे कदर अवेलेबल आसान तो दिस 4 स्कॉलरशिप होना क्या है being an Erasmus Mundus student you can still apply for other scholarships if you don't get the full scholarship तो फ्रेंच स्टूडेंट खतर 4 स्कॉलरशिप अवेलेबल आसान इथे पे जर्मनी से डार्ट ते वारिया फंडिंग में तुम डार्ट से पन प्रोग्राम आसान तो that way Erasmus Mundus is very considerable to very open program you guys twice are enjoying you should go through the website and look through the programs तो कौन सी कंट्रीज में हम अप्लाई कर सकते हैं मतलब कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं Erasmus Mundus प्रोग्राम के लिए तो Erasmus Mundus के कुछ प्रोग्राम स्टेट्स हैं जो आपकी डिग्रीज होस्ट कर सकते हैं जो आपके मेन कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं प्रोग्राम्स के जिनकी आपको डिग्रीज मिल सकती है जैसे ये साथ मैं अप्लाई करूँ उसमें मास्टर्स प्रोग्राम हो अतः ऑप्शन फ्रांस स्पेन इटली बेस पोलैंड तो मैं डिग्री फ्रांस डिग्री बेस में स्पेनिश डिग्री बेस में दुश्मन जान डिग्री फुल 2 year प्रोग्राम डिग्री इत पे क्या फायदा गसान ये डिपेंड कर अगर मैं जॉब आस कर फ्रांस में बहा फ्रेंच वर्जन ऑफ माय डिग्री अगर मैं जॉब आस कर स्पेन में बहा स्पेनिश वर्जन ऑफ माय डिग्री हम दुश्मन जान फुल डिग्री मिलान तो तम ऑप्शंस बढ़ान जॉबन खतर अप्लाई करने खतर बे सोन एक्सपीरियंस Erasmus Mundus joint master's degree programs हम एक जाए गसान कह तुम सेमेस्टर अकिस यूनिवर्सिटी में अकिस जाए अटेंड कर बैक सेमेस्टर आसो तुम बेस कंट्री में बेस जाए अटेंड कर पे ये एक्सपीरियंस जॉब इंटरव्यू में शेयर कर तुम बोड प्लस पॉइंट कि तुम इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा आसान एज एन Erasmus Mundus स्टूडेंट एज ए मास्टर स्टूडेंट कोर मैं पन फर्स्ट ईयर फ्रांस में मैं कर इंटर्नशिप जर्मनी TU म्यूनिकस में फ्रांस में एकोल सेंट्रल तम पे गोस स्पेन यूनिवर्सिटी जो मैं प्रीमियर तक करूँ पन फाइनल ईयर बे थीसिस तो ड्यूरिंग माय मास्टर्स I got opportunity to study in many countries so that was a plus point for me when I was applying for a job or now when I got my PhD so this opportunity of going through many countries and getting this learning exposure about different things is a very good opportunity that this provides you. Just to make sure. LaTeX से बनाया है आपने? Sorry?
Somebody was asking something. हो गया ये, मैं सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं. कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, just write in the comments so that I can understand. मगर आपको पता है, मैं बता रही हूँ, मेरा दिल वो कह रहा है. Oh, okay, sorry, I thought someone was asking a question. Okay. Yeah, everyone is muted. Maybe we can continue because I think there's some noise. Maybe can you hear me? Now can you hear me? No, I can't continue. Okay, किसी ने मुझे म्यूट किया था. Yeah, sorry for that. I read this. कोई नहीं. Okay, now so both Taiwan के international exposure शुदा वारिया available आसान अगर तो Erasmus Mundus programs join करें तो Erasmus Mundus exposure हिसाब शुदा यम European Union के सारे countries available आसान. शेंगन रीजन के सारे 28 कंट्रीज अवेलेबल हैं और उसके अलावा जो बाकी आइसलैंड, नॉर्वे, मैसेडोनिया, सर्बिया, टर्की, ये भी आपके कोऑर्डिनेटर कंट्रीज में आ सकते हैं और इसके अलावा पार्टनर कंट्रीज भी हो सकते हैं. पार्टनर कंट्री से आपको डिग्री तो नहीं मिल सकती, लेकिन आप वहां से अपने मास्टर थीसिस या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कर सकते हैं. फिर मेशियाद मास्टर्स प्रोग्राम जापान, ताइवान as a partner country available option. ऐसे ऑप्शन कैसे को जापान या ताइवान तक इंटर्नशिप करे. तो इसे पर प्रोग्राम कंट्रीज, पार्टनर कंट्रीज मतलब से इंडस्ट्रियल पार्टनर्स थे. मे फ्रेंच इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप BA सिस्टम जिस रोबोटिक्स बड़ कंपनी यम एयरबस खतर ऑटोमेशन एयरबस एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तुमन खतर ऑटोमेशन पार्ट्स बनावन. तिथे पे स्पेनिश यूनिवर्सिटी रोबोटिक इंडस्ट्रीज यम यूरोपस मज बड़ रोबोटिक्स कंपनी तुम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स. तो इमन Erasmus Mundus मास्टर्स प्रोग्राम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स थे वारिया ज़्यादा. This gives you a huge opportunity to directly get a hands-on experience while doing your internships. So, in such the option easy available job options are some basic within university to Erasmus Mundus alumni association to job applications, PhD applications, sorry चीज प्राप्त कोई मत assistance even CV बनाने का तो like committees आसान. तो usually Erasmus Mundus program च a full setup इन चीज़ प्राप्त चीज़ असम step by step help कर प्राप्त कोई चीज़ करता. General main मतलब यम चीज यम JMD main aims यम थे में presentation में तवे क्या यम चीज शुदा तम पत पन्ने CV में incorporate करने कुन तरीके क्या यम चात main aims. तो अगर तो हेक्यू यम points पन्ने CV में incorporate करें तम से शुदा additional edge मिला क्या कि हाँ of course तो क्या curricular excellence का साथ शुदा experience क्या शुदा ताकि वारिया ज़्यादा importance. मगर CV और SOP आप अपना कैसे बनाते हैं उसका अपना अलग मेरिट होता है. तो अगर आप ये जो कुछ मेन एम्स हैं EMGMD के अगर यही क्यों CVS या लेटर ऑफ मोटिवेशन में इनकॉर्पोरेट करें यम की मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यम तो डिस्टिंग्विश करन तो इस एप्लीकेशंस डिस्टिंग्विश करन. अक वारिया इंपॉर्टेंट पॉइंट यम यूस Erasmus Mundus applications खतर वारिया इंपॉर्टेंट से इंटरनेशनलाइजेशन तो इसे एक्सप्रेस करन के how you are the fit for this program. Not only like engineering के हिसाब से आप लोग अपना internationalization और excellence ये social sciences वालों के लिए बहुत important है अगर वो इस point को अच्छे से elaborate कर सकें कि कैसे आप लोग different cultures और ethics वगैरह को experience अपना ये
नोशन इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। हमारे लिए हमारा सिंपल यूजुअली होता है कि हम एक एंड से हैं तो हम अपने एंड लाइक मैं उस पॉइंट कि बस कोशर साइंस कशीर हंदिस एक्सट्रीमस सोन ये कशीर तक रोबोटिक्स ज्यादा एक्सपोजर कह तो ये मेन पॉइंट कि अत खतर अगर मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले तिमन जायन रोबोटिक्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड यह हेक बह इंशाल्लाह पन्नी कशीर कुन वापस इन या मे जूनियर तुम हेक बह अत कुन गाइड कर या अकॉर्डिंगली इथे पे तो इंटरनेशनलाइजेशन एक्सीलेंस यम कीवर्ड्स यम तो अपन सीवीएस या लेटर ऑफ एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करें ताकि तुम लेटर ऑफ एप्लीकेशन गस डिस्टिंग्विश करके हम रेलेवेंस वारिया ज्यादा चेक करान कि युस इरासमस मंडस रेलेवेंस इरासमस मंडस एम कत रेलेवेंस या इंटरेस्ट कोता बे सीवी गस जेनरिक आसन कि सीवीएस गस प्रोग्राम रिलेटेड कहीं ना कहीं यूजुअली साउथ एशिया at least for my experience कुनै CV प्राय अकु CV फॉरवर्ड करना मगर प्रत प्रोग्राम खतर गस थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करन पन्ने CV सॉरी CV गस बिल्कुल जेनरिक आसन के तो CV गस थोड़ा बहुत प्रत प्रोग्राम हिसाब मॉडिफाई करन यम प्रोग्राम्स गसन रिक्वायरमेंट चेक करन अकॉर्डिंगली गस इरासमस मंडस प्रोग्राम्स खतर छ यम चीज वारिया इंपॉर्टेंट कैस कि यम लाइक ये अपना असेसमेंट एजुकेशन के बेसिस पर देते हैं लेकिन इनका एक बहुत कोर कंसेप्ट है इंटीग्रेशन और क्योंकि इसमें दुनिया के हर कोने से स्टूडेंट्स होते हैं और आपको एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है आपका एक सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में होता है नेक्स्ट सेमेस्टर वुड बी इन सम अदर यूनिवर्सिटी तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत इस हिसाब का अपना वो सीवी बनाना है कि आप और कोकरिकुलर एक्टिविटीज का थोड़ा बहुत एज या वर्कशॉप्स आप कितने अटेंड करते हैं इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा हाईलाइट करना है अपने सीवी और एप्लीकेशन में और यूरोपियन सीवीज में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए अमेरिकन सीवीज कुछ हद तक थोड़े एलैबोरेट होते हैं लेकिन यूरोपियन सीवीज बहुत लिमिटेड होने चाहिए एटलीस्ट फ्रेंच और जर्मन सीवीज का मुझे आइडिया है जब मैंने एप्लीकेशन भेजा था तो उन्होंने बहुत छोटा सीवी रेकमेंड किया था जो मेरे सीनियर्स थे या जिन प्रोफेसर से मैंने बात की थी आफ्टर ब्याक चीज याद कि इंडिया अप्लाई कोर पे रिजल्टस वेट कर ये कि इरासमस मंडस वेबसाइट पे गु तुम करो कोर्स सिलेक्ट तक प्रोग्राम तुम करो पन प्रोग्राम सिलेक्ट तथ प्रोग्रामस पन अलग वेबसाइट पे होस्ट यूनिवर्सिटी पार्टनर यूनिवर्सिटीज तथ होस्ट यूनिवर्सिटी मज एप्लीकेशन कंटैक्ट दित कंटैक्ट पर्सन दित तो होस्ट यूनिवर्सिटी वुचिन बे होस्ट यूनिवर्सिटी हंद प्रोफेसर्स वुचिन तो तुम गोड़े ईमेल कर या उसको बिल्कुल माइंड नहीं करते अगर आप पहले ईमेल करके उनसे थोड़ा बहुत इंक्वायर करने की कोशिश करो कि वो क्या ढूंढ रहे हैं एक स्टूडेंट में और अकॉर्डिंगली अपना सीवी और एक्सपीरियंस अकॉर्डिंगली बिल्ड करो तो ये कुछ चीज़ें जो आपको अपना एप्लीकेशन सेटअप करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें कि हम लोग वो ई लर्निंग का बहुत कम यूज़ करते हैं। एडेक्स के जो कोर्सेज हैं, कोर्सेरा के जो कोर्सेज हैं या यूडेमी के जो कोर्सेज हैं, हमको पहले एप्लीकेशन पोर्टल पे अपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करने हैं कि मैं 2021 के लिए कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहा हूँ। तो तेमें हिसाब से पता है ई लर्निंग कोर्सेज विचिन पत तुम अप्लाई करूँ चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे और कोर्सेरा पे वो आजकल फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं और कुछ कोर्सेज में आपको आप एज ए स्टूडेंट फ्री भी ज्वाइन कर सकते हो। आपने बस एक ईमेल लिखना होता है फॉर फ्री कंसिडरेशन और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये सब चीज़ों का आपको अप्लाई करते वक्त ख्याल रखना है। आपने अपना पहले कोर्स सिलेक्ट किया, कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने प्लान थोड़ा बहुत करना है कि मैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कब लूँगा, टॉफल कब लूँगा। अगर आपका बैचलर्स में स्कोर कम है तो आप जीआरई के लिए भी टारगेट करें कि मैं जीआरई में भी स्कोर अच्छा करूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका बैचलर्स में स्कोर कम है कि आप जीआरई स्कोर नहीं कर सकते। जीआरई प्योरली मैथमेटिकल है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे, बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ा बहुत वो सब मिला के अगर आप थोड़ा टाइम प्रिपरेशन के लिए देंगे इंशाल्लाह आप अच्छे से जीआरई के लिए स्कोर कर सकते हैं। तो
अगर आपका बैचलर्स में स्कोर कम है, आप उसको GRE से कंपनसेट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट कंपल्सरी है ऑलमोस्ट हर जगह। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई यूरोपियन लैंग्वेज सीखना। आई वुड श्योरली रिकमेंड फ्रेंच और जर्मन, क्योंकि फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज, जर्मन सिर्फ जर्मनी में बोली जाती है और ऑस्ट्रिया में बोली जाती है, तो थोड़ा लिमिट हो जाता है, लेकिन जर्मनी की इकोनॉमी स्ट्रांग है। फ्रेंच का बेनिफिट ये है, फ्रेंच बहुत जगह बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी के कुछ एरिया में भी कुछ लोग फ्रेंच अंडरस्टैंड करते हैं, और बेल्जियम में भी फ्रेंच अंडरस्टैंड होती है। तो फ्रेंच का थोड़ा बहुत रीजन ज़्यादा है, और कनाडा में भी फिर आपके लिए फ्रेंच एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं तो वो एक आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो और कम ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके जर्मन या फ्रेंच सीखें। घर बैठे सीखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन से सीखें, बुक से सीखें, और फिर बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, B2 या जो भी लेवल का आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर एप्लीकेशंस में आपको थोड़ा टाइम भी लेना पड़े, कोई बात नहीं। अगर 1 साल आपका लग भी जाता है, ये एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे आपके लिए वर्थ बनेगा कि आपने जो भी टाइम इस पे स्पेंड किया हो, क्योंकि इसमें इजीली आपके पास ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। आपने बस थोड़ा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है अपना एप्लीकेशन को। तो अभी कुछ एडवांटेज क्या है Erasmus Mundus एप्लीकेशंस के? अगर आपका फुल स्कॉलरशिप हो गया तो आपको सारे पार्टिसिपेशन कॉस्ट लाइक ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ मिलेगा। ट्रैवल, लिविंग कॉस्ट, इवन ट्रैवलिंग कॉस्ट, लाइक जो फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपने कहीं और जाना है, आपको ट्रैवलिंग के लिए 2000 यूरो, वो अभी के इंडियन इक्विवेलेंट में 1.7 लाख रुपीस मिलता है हर ट्रैवल के लिए। तो उसके अलावा इंश्योरेंस, आपका मंथली स्टाइपेंड 1000 यूरोज आपको मिलता है। तो और आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, और इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका मास्टर्स लेवल पे इतना हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज जितने भी Erasmus Mundus जॉइंट मास्टर्स डिग्री में, वो सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि ये यूरोपियन कमीशन के अप्रूव्ड कोर्सेज हैं और इनकी फंडिंग यूरोपियन कमीशन से आती है। तो इसमें जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह। तो अभी वो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स थे, और एजुकेशनल बेनिफिट्स, टॉप एकेडमिक एक्सपर्टाइज, क्योंकि इसमें आपके इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं। एयरबस का रोबोटिक्स में एयरबस के ऑटोमेशन, मास्टर्स लेवल पे एयरबस का ऑटोमेशन हैंडल करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। BA सिस्टम्स हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पाल रोबोटिक्स, रोबोटनिक, ये टॉप अपॉर्चुनिटीज हैं यूरोप में। तो अगर आपको मास्टर्स में ऐसे इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहते हैं, मोबिलिटी रहती है हमेशा, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, स्कॉलरशिप का पूरा एडवांटेज है, और एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लाइक मेरे, जितना मुझे पता है, हमारे कोर्स में से कोई ऐसा नहीं है जिसने जिसका जॉब या PhD या इजीली अवेलेबल नहीं था। ऑलमोस्ट सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है बहुत इजीली। और उसके अलावा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी पॉइंट पे चाहिए, Erasmus Mundus एलुमनाई एसोसिएशन हमेशा आपके लिए अवेलेबल होती है। तो अभी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है Erasmus Mundus प्रोग्राम्स का, इसमें मिनिमम 3 यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आपके पास मिनिमम 3 यूनिवर्सिटीज हैं चूज करने के लिए कि आपको कौन से कंट्री में अपना मास्टर्स प्रोग्राम करना है। तो कंट्रीज चूज करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना, अब आजकल यूके प्रोग्राम कंट्री नहीं है, लेकिन यूके स्टिल पार्टनर कंट्रीज में कंसिडर होता है अभी भी। तो अगर आपने मिडल ईस्ट जाना है, मिडल ईस्ट वालों को फ्रेंच कंसिडरेशन थोड़ा बहुत है, क्योंकि फ्रेंच में अल्जीरियंस और मोरक्कन्स थोड़े बहुत अरबिक स्पीकिंग है, तो फ्रांस का थोड़ा बहुत मिडल ईस्ट में एक्सेप्टेंस बहुत है। उनका अमेरिकन एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो सबको पता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में से फ्रेंच एक्सेप्टेंस काफ़ी है, और जर्मन और ब्रिटिश एक्सेप्टेंस काफ़ी है कि इन जगहों को वैल्यू करते हैं। हालांकि नॉर्डिक कंट्रीज या स्वीडन या ये वाली जो कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी बेटर है और उधर यूनिवर्सिटीज भी कुछ बहुत अच्छी हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में इन जगहों की अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आपका प्लान ये है कि आप फ्यूचर में कहीं मिडिल ईस्ट में किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए टीचर और एज ए प्रोफेसर, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि आपके ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में एक यूनिवर्सिटी UK या जर्मनी या फ्रांस से भी हो, ताकि आपका एप्लीकेशन के वक्त वो लोग इस चीज़ को देख सकें। अगर आपने यूरोप में जॉब करना है तो आप श्योरली नॉर्डिक कंट्रीज को फर्स्ट प्रेफरेंस दें, उनका इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। और अगर आपने यूरोप में टीचिंग लाइन या रिसर्च लाइन पे जाना है तो फ्रांस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।
और अगर आपने थोड़ा बहुत रिलैक्स, ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, इटली एंड स्पेन आर रियली गुड ऑप्शंस फॉर दैट। अगर आपको बहुत आराम से कोच करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो इटली स्पेन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। और अभी एक एग्जांपल है एक कोर्स की कि इंजीनियरिंग के लोग थोड़ा बहुत अवेयर होते हैं इस चीज़ से, तो मैंने सोचा बाकियों के लिए जो इवन सोशल साइंसेज वाले काफ़ी अवेयर होते हैं यूरोपियन एप्लीकेशन से। हमारे जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं कश्मीर से, वो बहुत कम अप्लाई करते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक एग्जांपल मैंने उनके लिए रखा है, ये एमएससी यूरोपियन फॉरेस्ट्री का है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें 5 पार्टनर यूनिवर्सिटीज और एक कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी है। कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी फिनलैंड की है, फिर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, स्पेन, इतने आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। 6 ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें 6 ऑप्शंस और 11 यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। और आपका पर मंथ, और ये पूरा 120 ECTS क्रेडिट्स है, इंडिया में इजीली एक्सेप्ट होगा आपका एज मास्टर्स। और आपको पर मंथ ये लोग 1000 यूरो स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर कोई इंजीनियरिंग या कोई फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है। मतलब इंजीनियर्स छ तोइत अप्लाई करन, यम सोशल साइंसेस वल छ तुम छ तोइत अप्लाई करन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर वल छ वारिया कम अप्लाई करन यूरोपियन कोर्सन खातिर। तो उनके लिए मैंने ये सोचा ये एग्जांपल इट शुड बी वेरी सूटेबल। सो ओके, उसके बाद ये एक एग्जांपल है कि कितना पर स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन आप पे खर्चा करता है। तो पर स्टूडेंट 25,000 यूरो स्कॉलरशिप आपको मैक्सिमम दिया जा सकता है। 25,000 यूरोज को अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो करीब करीब 2,000 यूरो स्कॉलरशिप आप पर इन्वेस्ट होता है। तो वो करीब करीब 1,70,000 इंडियन रुपीस पर मंथ आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन। तो ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है जिसको हमको यूटिलाइज करना चाहिए। ये ऑप्शंस हैं आपके, आपका ईयरली फीस कितना वो आपको देते हैं, और आपका मंथली अलाउंस कितना है, ये आपके ट्रैवल रिएम्बर्समेंट है, और ये आपका इनिशियल कॉस्ट है जब आप पहले आकर अपना रेसिडेंस सेटअप करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस और एवेन्यूज आपके लिए अवेलेबल हैं एज एन इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट। तो लास्ट पे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप EMGMD, इवन अगर आप गूगल में भी देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये चीज़ अवेलेबल रहेगा। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने प्लान करना है अपने इसको अच्छे से अपने एप्लीकेशन को। तो इंशाल्लाह आप लोगों का एप्लीकेशन बहुत इजीली एक्सेप्ट हो सकता है। तो होपफुली दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड सो you can write to me if you want to ask anything, and Shakil bhai if you want to add anything, or if you want me to share anything else. Now I can receive some, I can accept some questions right now. If anyone has a question, then let me announce them all. Okay, Anyone has a question, you can ask. Hi, Assalamu alaikum. So, Mustahid, my question is basically कि कितना कम pointer है which you consider on a scale of 10? I'm asking on behalf of some students who are, who want to apply for this program. So, on a scale of 10, how much less you consider the pointer in order to apply for this course? In order to, what are the chances? 7 से ऊपर is okay, or 7.5 is okay, or 8 से ऊपर वाला CGPA is okay for the application. So that because we know a lot of people in Kashmir, they don't usually want to, मतलब वारा conditions चाहता GRE के लिए apply करने के लिए, right? So accordingly they'll manage. I think if you can stress on this point a bit. Thank you. ओके, सो जो क्वेश्चन है पॉइंटर का, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है यूनिवर्सिटीज़ पे, लेकिन यूजुअली जो एप्लीकेशन स्टार्ट प्रोसीजर है उसमें 6.5 आपका बेसिक होता है। अगर आपका पॉइंटर 6.5 से ऊपर है तो मेरे ख्याल से 6.5 बहुत ही रिलैक्स पॉइंट एक लेवल है। 6.5 अगर ये लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वो बहुत ईजी होता है कश्मीर से हमारे लिए 6.5 पॉइंटर को। इरास्मस मुंडस के लिए 6.5 कंसिडर होता है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका पॉइंटर 6 के करीब है, और उसके बावजूद वो TU म्यूनिख में कुछ मेरे दोस्त हैं। तो पॉइंटर इससे पहले मैंने एक बार ये मेंशन किया था कि अगर आपका पॉइंटर यूनिवर्सिटी से आपका कम है तो आप GRE पे फोकस करके GRE में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें।
हाँ, GRE में थोड़ा बहुत है कि सब लोग GRE अफोर्ड नहीं कर सकते पहले, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप GRE में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप फुली प्रिपेयर्ड हो, वन टाइम फीस है, वो आपका इंशाल्लाह इजीली स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगा फिर। तो फॉर इनिशियल अगर आपका पॉइंटर 7.5 से ऊपर है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा उसके बाद। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए मे बी कंसिडरेशन होगा, लेकिन यूजुअली ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं होता अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके रेलिवेंट कोर्सेज अच्छे हैं और आपका CV और SOP अच्छा है। आप क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत फोकस किया था कि इनका इंटरनेशनलाइजेशन और इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो अगर आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस और या वॉलंटियर एक्सपीरियंस कैंपिंग, जैसे हमारे यहाँ वो कैंपिंग होते हैं कि वो कैंप्स इंटीग्रेशन है, या IEEE के इंटरनेशनल वो होते हैं एक्सपोजर्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर दिखा सकते हो, वो उस चीज़ को अपना रेलेवेंस दिखा सकते हो, तो पॉइंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता फिर। लेकिन अगर आपका 7.5 से ऊपर पॉइंटर है, यू शुड श्योरली कंसिडर अप्लाइंग। इफ योर पॉइंटर इज 7 और फ्रॉम 6.5 to 7 समवेयर बिटवीन दैट, यू शुड ट्राई टू कवर इट अप विद GRE स्कोर। तो अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के GRE स्कोर से इसको कंपनसेट कर सकते हो, देन इंशाल्लाह you have a very good option. There is always an option, but yeah, for scholarship, that would be a good one. Maybe I can append your point, but I will like answer. So, for example, if you have only suppose 7 pointers and the hospital requires only 7 points, for suppose you are applying for a data science program, and in the data science program, the core courses which you are taking are mathematics, probability, and statistics. If you have high grades in those subjects and you have less grades in other subjects, like I'm sorry to Shakil, I'm sorry to interrupt you, but there is a lot of noise, and I'm sure nobody's able to understand what are you saying. I'm sorry. No, Please try to. can you hear me right now? No, there is a lot of noise. So if you can just try to just change the headphones or something like that. Actually, I'm using not headphones, so I will try to use headphones. शकील भाई टाइप करें, टाइप कमेंट्स में टाइप कर दें तो Yeah, I think that's better. I will take time. Simultaneously किसी ने पूछा, if you have someone who is a green card holder, can you sponsor me for H1 visa? मैंने खुद का PhD एप्लीकेशन अभी मैंने USA के ऊपर यूरोप को कंसिडर किया है, क्योंकि वहाँ वीजा मिलने के बाद भी वो लोग बहुत आजकल इश्यू कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें सॉरी कुछ नहीं बोल सकता। ओके, सिविल ब्रांच सबके लिए यूनिफॉर्म स्कॉलरशिप है। आप सिविल ब्रांच से, मैकेनिकल से, कोई भी ब्रांच है, आप सबको 1000 यूरोज मिलता है स्कॉलरशिप। तो 1000 यूरोज काफ़ी होता है मास्टर्स लेवल पे, तो इंशाल्लाह इट्स अ गुड ऑप्शन। शायद हुज़ैफ भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि सिविल के लिए कितना स्कॉलरशिप है। ओके, तो 1000 यूरोज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, अगर आप सिविल से हो तो आप सिविल में ही जाओगे, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। सिविल के बाद डेटा साइंस में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिविल, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें सिविल किया हुआ है, वो फिर डेटा साइंस ऑप्ट करते हैं। तो थोड़ा बहुत ब्रांच को भी उतना रेस्ट्रिक्ट ना करें। जैसे मैंने जब रोबोटिक्स के लिए अप्लाई किया था, रोबोटिक्स में मेनली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैचलर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, उसके बाद मास्टर्स रोबोटिक्स में किया, तो उतना इशू नहीं है। और अभी जो मेरा PhD है वो टॉपिक रोबोटिक्स का है, स्लैम, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन का है। तो हमारा जो कश्मीरी सिस्टम है या इंडियन साउथ एशियन सिस्टम है रेस्ट्रिक्ट करने का टॉपिक को, वो यहाँ उतना अप्लाई नहीं होता है। Meanwhile, another question Mujtahid I want to ask, like आप थोड़ा सा हमें कर सकते हैं इस बारे में डिटेल, like you know starting from the scratch, like being a layman and we the students from this particular area, like how do you in the layman language would like to tell students कि अच्छा ठीक है आप यहाँ से start करो, ये वाली site से maybe you can get an idea of universities, because to be very honest जब मैंने भी किया था Erasmus का, एक ये भी था कि मेरा कि मुझे पता नहीं थी कि करना कैसे है। So जब upcoming applications है, आप उनको अगर थोड़े से steps बताएं कि ये वाली sites है, जैसे हमारे पास career 360 अच्छी विछान जी यम चीज, तो Erasmus के लिए अगर कुछ basic steps if you can quickly add on kindly.
हाँ, इरास्मस के लिए एक जो प्रेजेंटेशन अभी है उसके एंड पे एक लिंक दिया हुआ है, वो इरास्मस मंडस एप्लीकेशन का है। उसके अलावा एक वो पीडीएफ भी है इरास्मस मंडस एप्लीकेशन का। तो इंशाल्लाह आई विल आस्क शकील भाई टू अटैच इट ऑन द फेसबुक पेज और वेरेवर ही कैन शेयर इट। एक तो वो लिंक्स आपको बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे अप्लाई करना है। और बेसिक चीज़ शुरू करने से पहले पहले आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, या इवन आपको बस वेबसाइट जाना है, कोर्सेज देखने हैं, और सिर्फ इरास्मस में आप 3 कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं एट ए टाइम। आप 3 कोर्सेज सेलेक्ट करें, 3 कोर्सेज को अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं, आप 3 में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यूजुअली 0 होता है, तो आपने फ्री में अप्लाई करना है तो आपका कुछ नहीं जाता है। जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फीस थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सब में नहीं होता, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्ट में अगर आप सिविल में हैं तो आप एक लिस्ट बनाएं कि आपके पास कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं, या अगर आप इलेक्ट्रिकल में आपके पास कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। इस इलेक्ट्रिकल वालों के पास सिर्फ पावर सिस्टम, कंट्रोल थ्योरी या सेमीकंडक्टर्स यही वाले ऑप्शंस नहीं है, आपके पास रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पहला चीज आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना ओपन हो किसी सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। मेरे लिए मैंने काफी रेस्ट्रिक्टेड प्लान बनाया था क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था। इवन हमारे प्रोग्राम में मैथमेटिक्स वाले हैं जिनने अपना बैचलर्स मैथमेटिक्स में किया था, उन लोगों ने रोबोटिक्स ज्वाइन किया आगे मास्टर्स में। तो या जिन्होंने सिंपल बैचलर इन साइंसेस किया था, नॉट नेसेसरी आपने इंजीनियरिंग किया हो। अगर आपका सिंपल बीएससी भी है, उसके बाद भी वहाँ उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रोबोटिक्स में अपना मास्टर्स किया। तो बेसिक चीज़ है, आपको पहले ये डिसाइड करना है आप कितना ओपन हो सब्जेक्ट के लिए। वो एक बार वो डिसाइड किया, फिर आप यूनिवर्सिटीज़ पहले इरास्मस मंडस एक साइट है, आप वो साइट पे चेक करो, बहुत स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। इरास्मस मंडस के बाद अगला डार्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है, DAAD। ये जर्मनी के लिए प्रोग्राम्स हैं जो जर्मन स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आप डार्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद एक बहुत सिंपल तरीका, आप हर कंट्री की पब्लिक यूनिवर्सिटीज चेक करो, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस, जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस 0 होता है। तो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज चेक कर सकते हो, TU म्यूनिक है, RWTH आखन है, TU बॉन है, या डार्मस्टाड है, या जो भी जगह हैं जर्मनी में जो हैं, जैसे उमर भाई है या अंजुम भाई है, इफ एनीवन ऑफ देम इज हियर दे कैन हेल्प यू मोर। बट ये जो प्योर जर्मन यूनिवर्सिटीज हैं आप इनको चेक कर सकते हो। लेकिन शुरू के लिए आप इरास्मस वेबसाइट चेक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड होगा आपको। ये आपने गूगल में बस EMJMD टाइप करना है, पहली वेबसाइट इरास्मस की आएगी आपको। वहाँ आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन से नेचुरल साइंसेज से हो, इंजीनियरिंग साइंसेज से हो, जिससे भी हो, सोशल साइंसेज से हो, आपने बस स्टेप बाय स्टेप जो सिलेक्ट करना है, आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे, आपने वो सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है, आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत इजीली आपको मिलेगा। फिर आपने उस प्रोग्राम की वेबसाइट खोल के अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। डेडलाइन यूजुअली एप्लीकेशन ओपन होता है सितंबर अक्टूबर में, पहली डेडलाइन दिसंबर में खत्म हो जाती है, और आपने पहली डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है, क्योंकि पहली डेडलाइन से पहले स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। दूसरी डेडलाइन होती है फरवरी मार्च में, लेकिन उसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होती है, एज इन प्राइमरी स्कॉलरशिप। आप बाद में दूसरी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कॉलरशिप दिसंबर के डेडलाइन तक अवेलेबल होता है। तो मेक श्योर यू अप्लाई बिफोर दिसंबर। फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर का जो ब्रैकेट है, इसमें आप इरास्मस मंडस मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अलावा जब आप इरास्मस मंडस वेबसाइट पे प्रोग्राम देखेंगे, वो आपको होस्ट यूनिवर्सिटी बोलेंगे, फिर आप होस्ट यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को ईमेल्स लिखें, 1 या 10 ईमेल लिखें। ये बिल्कुल माइंड नहीं करते हैं यहाँ के लोग, लेकिन ईमेल अच्छे से स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल ईमेल लिखना है, उनसे पूछना है कैसे अप्लाई करना है, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो बहुत इजीली सब हेल्प करेंगे। उसके अलावा डार्ट आप देख सकते हैं, डार्ट पे आपको इजीली बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। उसके बाद आप कुछ जगह जो लोग इग्नोर करते हैं, जैसे TU वियन है, TU वियन ऑस्ट्रिया में, वियना में, या TU ग्राज है ऑस्ट्रिया में, या नेदरलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे है, TU डेल्फ्ट है, या यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम है, ग्रोइंगन है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज है, मेरे ख्याल से शकील भाई और एनीवन can put a list of universities which we should look for and we should join.
तो साइड में किसी ने आईफिल स्कॉलरशिप फ्रांस का पूछा है, तो चारपाक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उसको अप्लाई करने का। तो वो बहुत अच्छा एक और ऑप्शन मुझे याद है कि एप्लीकेशंस आप कहाँ से शुरू कर सकते हो। कैंपस फ्रांस दिल्ली में एक ऑफिस है। तो कैंपस फ्रांस का ऑफिस लोधी रोड, बिल्कुल लोधी गार्डन के ऑपोजिट दिल्ली में ऑफिस है कैंपस फ्रांस का। आप लोग वहाँ वहाँ मेरा एक भाई है, एज एन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, रजत उसका नाम है। तो वो कश्मीरी है, तो he is really interested in helping people out. Like literally, he looks for people who want to apply in France and helps them out. वो आपको step by step help करेगा, इवन यूनिवर्सिटीज ढूंढने में और आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर में वो कैंपस फ्रांस वाले हेल्प करते हैं अगर आप फ्रांस ज्वाइन करना चाहें तो। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कैंपस फ्रांस दिल्ली गूगल में सर्च करें तो आई होप यू जस्ट नोट दीज थिंग्स डाउन। दीज आर जस्ट फ्यू थिंग्स। EMJMD website for Erasmus Mundus programs, and DARD for Germany, and Campus France for scholarships. These contact details. आप वेबसाइट चेक कर लें। ऐसे आई वुड हैव टू आस्क हिज परमिशन इफ आई कैन शेयर हिज डिटेल्स, बट अगर आप वेबसाइट चेक करें बहुत इजीली सब अवेलेबल है। कैंपस फ्रांस दिल्ली सर्च करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ये बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं आपके पास जो आपको उल्टा सपोर्ट करेंगे आपका यूनिवर्सिटी कोर्स ढूंढने में, आपका प्रोग्राम ढूंढने में, आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लें, मैं पहला पॉइंट मैंने वही बोला था कि हम जो गलती करते हैं हम बहुत हरी करते हैं अपने एप्लीकेशंस में। तो इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा बहुत स्लोली इस चीज़ को लेंगे तो इंशाल्लाह इट शुड बी अ वेरी गुड opportunity for you to study in anywhere in Europe, and it would be very beneficial, inshallah. I hope this was the answer. Okay. Okay, can you share some key points that every scholarship asks for? तो स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस में ये डिपेंड करता है। अगर आप कंट्री जैसे अगर आप प्योरली किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे TU म्यूनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो एकेडमिक एक्सीलेंस पे बहुत फोकस करेंगे। तो TU म्यूनिक वालों के लिए आपका एकेडमिक शकील भाई आपका माइक ऑन है। Yeah, my mic is on. तो स्कॉलरशिप्स का बेसिक पॉइंट यही है कि आपने डिसाइड करना है यूनिवर्सिटी आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, एकेडमिक एक्सीलेंस नॉट एज इन कि आपका पॉइंटर बहुत ज़्यादा हाई हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका TU म्यूनिक में एडमिशन हो गया और उनका पॉइंटर 6.2 6.3 के करीब है। तो लेकिन आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड प्रूव करना है कि आप अगर किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप सिर्फ ये प्रूव करो कि मेरा इस कोर्स में अच्छा स्कोर था तो मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आप ऐसे फोकस कर सकते हैं, अपना GRE स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अपना TOEFL स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और E-लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हम बहुत कम यूटिलाइज करते हैं, लेकिन कोर्सेरा और edX से कोर्सेज कलेक्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कलेक्ट कर सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और कोर्सेरा और edX पे भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें कि जो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, तो वो आपको बहुत प्लस पॉइंट देता है अप्लाई करते वक्त। और सिर्फ edX सर्टिफिकेशन ना लें, अगर आपको 2000-3000 रुपये भरने भी पड़े, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन लें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है जब आप अप्लाई करते हैं। वो कोर्सेज थोड़े बहुत कलेक्ट करें, ये यूनिवर्सिटी डिग्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं जो यूनिवर्सिटी का ना हो, बहुत जेनरिक हो, जैसे एरास्मस मंडस है, डार्ड है, तो ये लोग इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप वॉलंटियर वर्क, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स या स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, ऐसी चीज़ें जितनी भी हैं उनको थोड़ा बहुत हाईलाइट करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन वाले स्कॉलरशिप्स के लिए। So Zeba, I hope that makes things clear for you about the scholarships and which points to utilize. कैंपस फ्रांस के लिए आप फ्रेंच बहुत सीखें, फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज जर्मन या फ्रेंच में से एक को थोड़ा बहुत ट्राई कर लें सीखने के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। I think that should be it. Like these things should help you with scholarships. और अगर ना भी हो, जर्मन यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन फीस बहुत कम होता है।
और हाँ, make sure you apply at many places. Erasmus के 3 apply कर लो, DARD के 3 apply कर लो, TU म्यूनिक, RWTH आखिर अगर आपका स्कोर कम है तो किसी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जर्मनी में अप्लाई कर लो, TU वियना में अप्लाई कर लो, TU ग्राज में अप्लाई कर लो, TU डेल्फ्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे. Make sure you apply like at least at 10 or 15 places. Applications are free or very cheap, so they just increase your opportunities. क्योंकि you never know, अभी यहाँ available है, यहाँ नहीं available है, तो ये purely chance based भी होता है कि कहीं पे किसी साल अच्छा application में competition कम हो जाता है तो आपके chances increase हो जाते हैं. तो application थोड़ी ज़्यादा जगह किया करो. तो और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह अप्लाई करो तो वो अच्छा नहीं होगा. यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एस्टैब्लिश्ड और काफ़ी अच्छा है. बस मेक श्योर. Okay, so bus make sure that your application is in like good public universities, and that's it. You don't have to pay much, and or if you can afford some of it, but still keep things in like keep applying at many places. Don't restrict it to very few places. I hope that should be it. I think if we will take the last question, otherwise we can wind it up. I think if anyone has a question, we will take, otherwise we'll wind it up. Inshallah, I will upload both the PPT and the PDF document, which would help you with the application. And lastly, Erasmus Mundus is not only for master, it is also for PhD as well. Yeah, Erasmus Mundus joined doctoral. Yeah. So I think we will complete this session with this one. Sorry, can you write Shakil bhai? आवाज बहुत unclear. Okay, so just one thing about spring or autumn sessions. Usually यूरोप में autumn sessions ही application होता है masters के लिए mostly. बहुत कम courses का spring session होता है. और जो portals पे applications हैं उनमें usually autumn session का application होता है, और हमारे लिए भी वही easy रहता है apply करना उसके लिए. Okay, hopefully this was very good for everyone. Assalamu alaikum. And thank you for all your questions, and hopefully it helps.